Hey guys, what's up? Welcome to another new podcast episode of the गिरिराज असर पॉडकास्ट एंड आज का पॉडकास्ट स्पेशली स्किल्स के ऊपर है सारा कि यार स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। ऑनेस्टली मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर ही पॉडकास्ट बनाऊं एंड फाइनली आई गॉट ए राइट पर्सन which have a good knowledge about on skill sets. So today my podcast guest is अरबाब उस्मानी जो फाउंडर है आप स्किल्स। यहाँ पे वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज ट्रेनिंग्स वगैरह सिखा रहे हैं। उनको काफ़ी आई थिंक 19 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में एंड टीचर में। इज द रनिंग ए गुड कम्युनिटी एज वेल एज। सो लेट्स ट्यून इन द एपिसोड आफ्टर द क्यूक शॉर्ट इंट्रो। Hello, Arvav sir, and thank you so much for joining with me and accepting my invitation. It's such a pleasure and honor to be here on the Giriraj sir podcast. And honestly, I learned lots of things from you in your community as well as BMP community and also your podcast. So thank you so much. Be there. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. Yeah, we directly talking about on persons and exactly if we talking about on skills because skills are so popular because is when now after the COVID and we understand the power of the skills, how skills will be helpful for side hustling, side earning. What exactly skill is? Right. So you are talking about digital marketing, right? No only skills. You are What talking about exactly? it's not skills is not only about that. Let's talk about let's take some perspective and let's understand that how important skills are. Right. Uh, we have a neighbor country called China, right? Yeah. Now China have almost similar population like India, right? Exactly. Right. But the per capita income of China is around $10,000. In India, it is around $2,000. Yeah. Now, if we put the number of people in China and number of people in India, they are almost equal, like 19-20, right? It's like almost. But if you put the skillful people in China and skillful people in India, there is a huge difference. There is a huge difference there, right? So see that China is like world's second or third largest, that economy. It become economy like one of the largest economy in the world, right? India is lagging behind. India is like sixth or seventh number, and they are actually rising into that area. And the reason behind that, like that competing with the China and all those things, it's skill is always important. None of the business can run without a skillful person. See how business happens. Let's take example of a product kind of business, like you're developing a product and you're selling it. It has three phases. First phase, raw material. You get the raw material. Again, to get that raw material, you need like the whoever company is producing that raw material, they also need a skillful people to procure that material, right? Maybe they can be laborers, they can be truck drivers, they can be that are different kind of people, right? The company who is actually doing it, right? Now your company needs raw material, they actually order to that company provide you raw material, right? Now the second stage, from that raw material you build a product, right? Then again, to build this product, use that raw material, you need a skillful person, skillful people for that. And then after that, it goes to the market. It goes to the market. Your product goes to market. For example, let's take a very simple example of car. If you want to manufacture a car, first of all, you need a raw material. In terms of car, raw material is not that it's not iron, it's not this kind of thing. For car, raw material is a gate. Raw material can be a mirror. Raw material can be entire electronic system. It can be roof. It can be your wheels. It can be chassis. Different kind of thing. It can be engine, parts of engines, different engines, and you actually procure all those things from the different businesses around that. Who is like there may be business who is only making gates of cars, right? Business to business communication, right?
To make that gate of that car, the other business, not your business, the other business also need skillful people to do that. They procure, that metal, iron, all those things, and then shape, they cast, and all those things do, right? So they need skillful people, right? And again, when that door comes and all those things comes, to assemble this, again, you need a skillful people, right? So it's a very vague example. Now let me take a very simple example, very simple example, right? Not everybody is a car manufacturer, right? Not everybody is a car manufacturer, not everybody, right? Let's take a very simple example, day-to-day life. Samosa, Exactly. right? It's like everybody knows in India samosa, right? So to make that samosa, you procure raw material. It may be it may be potato, it may be flour, it may be oil, it may be gas, right? Again, for potato, there are skillful kisans are there, skillful farmers are there who are actually building it, right? For flour, there are skillful people. There is a process behind that. Let's not talk about it. Let's talk only about samosa, right? To make samosa, even if you have, like, if I give you all those things, can you make the samosa, Giriraj? Can I make the samosa? No, because we do not have those skills. So again, they need a skillful person to make that tasty samosas so that people can go and eat. Like, not everybody can make samosa, good samosas, right? So again, people need skillful people to run any kind of business, be it samosa ka business, be it car manufacture. They need it, right? And without without those non-skillful or less skillful people, company is going to face a huge loss. You have seen that a lot of companies, almost 90% startups in India, which starts, it closed down. 90% is there, is the number, right? Now, in that 90%, there are various problem into that, but one of the very major problem is that they are not able to build their team. They are not able to find the skillful people to do the so, right? So for that, they have to close down their startups and all those things. So skill is very essential to run any business, and business is very essential to run any country, your society, your, everything in your life, right? So that is how important skills are. एग्जैक्टली नहीं, डे टू डे लाइफ में तो बहुत सारी चीजों में होती है जहाँ पे हमें इसकी नीड्स होती है. अगर स्टार्टअप या फिर कैरियर्स को हटा दे तो उसमें तो ऑब्वियसली स्किल्स की नीड्स होती है. विदाउट स्किल्स तो आई थिंक आपका कुछ कर ही नहीं सकते. फिर क्यों लोग आपको हायर करेंगे या फिर क्यों आपको पैसा देंगे विदाउट एनी स्किल्स? और यही रीजन है ना कि लोग स्किलफुल पीपल को ज्यादा हायर करते हैं. डिजिटल मार्केटिंग में बात करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग लोग, होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में, लोग लिंक शेयर करते हैं फेसबुक में, 10 लाइक आ गए, अगले दिन से अपने प्रोफाइल में लगा दे डिजिटल मार्केटर या डिजिटल फलाना टिमकाना लगा दिया, राइट? इट्स नॉट डिजिटल मार्केटिंग. वो लिंक क्यों शेयर करना है, काहे शेयर करना है, उस लिंक के अंदर जो टेक्स्ट है या जो लैंडिंग पेज में क्या क्या वर्ड जाएगा, कैसे यूजर को कैप्चर करेंगे, उसके पीछे बहुत सारा थॉट प्रोसेस होता है. आप जानते हो लिंक शेयर कर दिया अगले दिन से. तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा डिजिटल मार्केटर या डिजिटल फलाना ठिकाना लगाते हैं. Yeah, exactly. Honestly, I'm agree with you. आपने just like समोसे का ही एग्जांपल दिया था, तो सबकी सिटी में हर गली में समोसे वाला होता है. बट उस सिटी में जो अच्छा समोसे वाला होता है, जिसके पास एक तरह से सब लोग दूर दूर से आके जाते हैं, वो तो आई थिंक बनिया टू ही होता है. और वो उसका भी यही रीजन होता है कि वो हर चीज को प्रॉपरली केयर करके लगाता है. वो चाहे चटनी से लेके आलू से लेके हर चीज को अच्छे से स्किल सेट को डेवलप करता है, तब जाके वो इतना पॉपुलर होता है. एग्जैक्टली. एंड आफ्टर द कोविड लाइक स्किल्स का काफी बढ़ा है, स्किल्स डेवलपमेंट, लोग काफी इस चीज को अवेयर लेने लगे हैं. जस्ट लाइक जैसे हम भी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पहले स्कूल्स का इतना नहीं था, कि पहले फिक्स था कि लोग स्कूल्स के बाद ही स्किल्स पे ध्यान देते थे, जब कॉलेज या फिर इनमें. अभी जस्ट लाइक स्कूल में भी बच्चे काफी ध्यान दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीख लिया या फिर छोटी छोटी स्किल्स से होती है ना ये कर करनी. तो अकॉर्डिंग टू यू कोविड का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा स्किल्स डेवलपमेंट पे, स्किल्स ट्रेनिंग पे? यार मैं एक चीज बताऊं, अगर कोविड नहीं भी रहता ना तो स्किल डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी, हम लोग का जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि खराब है. वो एकेडमिक बेस्ड है, बट वो धीरे धीरे ओल्ड हो रहा है, पुराना हो रहा है. ठीक है, तो पुराना होने पे चीजें चेंज होती है. जैसे कि पहले अगर तुम देखोगे तो कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप सेल नहीं होता था. पहले कॉलेज में हम लोग जब इंजीनियरिंग किए तो उस टाइम उतना नहीं होता था.
ई सेल फैलाना ढिमकाना। अभी हर कॉलेज में एक ई सेल होता है, हर कॉलेज में ऑलमोस्ट। अच्छा जो कॉलेज होता है उसमें इंक्यूबेशन सेंटर होता है, जहाँ पे उनके स्टार्टअप इंक्यूबेट करते हैं, जहाँ पे उनको आगे दैट सीट मिलता है कि आप बैठ के यहाँ पे आप एक ऑफिस ले लो, छोटा सा ऑफिस ले लो, आप यहीं पे बैठ के काम करो। पहले हम लोग के टाइम में जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो ऐसा नहीं होता था वैसा, राइट। तो अभी धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है ना, तो धीरे धीरे चीजें चेंज होकर अभी स्किल की तरफ में, स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ में सारी चीजें आएंगी। वो आएंगे आज नहीं तो 10 साल, 5-10 साल बाद ये चीज होगा। ऑलरेडी आप देख ही रहे हो स्किल बेस्ड लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, राइट। तो वो चीज होगा, राइट। लेकिन इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्किल बेस्ड इंडस्ट्री का, कि इसको लेजिटिमेट बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा। जैसे कि एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसको लेजिटिमेट बनाने के लिए उसको सर्टिफिकेशन है, फलाना है, ढिमकाना है, यूजीसी रिकॉग्नाइज करता है, एक एग्जाम का बॉडी है, एक सर्टिफिकेशन है, राइट। वैसा इंडियन गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। स्किल बेस्ड एजुकेशन वाले जो भी प्रोवाइड करते हैं, या कोई यूनिवर्सिटी आगे जाके बनने वाली है, या यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी जो स्किल बेस्ड है। ऑलरेडी आई थिंक हरियाणा में इन्होंने एक बनाया है, राइट। तो उसके उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इकोसिस्टम पूरा बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। इट्स नॉट लाइक कि ये पुराना वाला खराब है, बट इट्स बेटर। स्किल बेस्ड एजुकेशन इज बेटर देन द हम लोग जो पढ़ते थे रट्टा मार मार के एग्जाम जो पास करने वाला है, कि प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम है उसको पेपर में लिख रहे हैं। कैसे लोग कंपाइल करेगा, टीचर कैसे एवेल्युएट करेगा इतने पेपर को, इतने छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं कि एक लाइन में मिस्टेक हो जाए तो कैसे बेचारा वो देखेगा, राइट। राइट, तो इस टाइप की चीजें हम लोग भी करके गुजरे हैं, तो धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है। हाँ, एग्जैक्टली। एंड आल्सो हरियाणा का, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट प्लक्सई यूनिवर्सिटी। उनके काफी अच्छे हैं कोर्सेज भी काफी। मैंने कुछ कैरिकुलर्स देखे थे उनके कोर्सेज के, प्लस उनके जो 1 1 ईयर के आई थिंक कोर्सेज भी हैं कुछ, वो काफी अच्छे। एंड आल्सो एक स्किल्स की बात आती है तो एक चीज होती है जब इनिशियल टाइम में कि कौन सी स्किल्स सीखे, कि दिस स्किल इज मैचिंग फॉर अस, क्योंकि हर स्किल्स तो आई थिंक इनिशियल टाइम में मैच नहीं करती। कोई भी स्किल्स सीधा लाइन कर लिया। So, what is your opinion on it? How can select the good skills and how can initial time में जो basic जिनको ज़्यादा in the college या schools में skills line करना है तो how can adopt? देखो, दो तरह का स्किल होता है, एक होता है सॉफ्ट स्किल होता है, एक होता है हार्ड स्किल होता है। हार्ड स्किल जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करेंगे, राइट, कंटेंट कैसे लिखेंगे, ये सब हार्ड स्किल होता है। हार्ड स्किल से पहले और हार्ड स्किल के बाद सॉफ्ट स्किल, दोनों टाइम में आता है सॉफ्ट स्किल आता है। नाउ सबसे पहले यू नीड टू फिक्स योर माइंडसेट एंड एटीट्यूड, ये सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। नाउ अगर तुम स्टूडेंट हो तो सबसे पहले तुमको ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और ये हम लोग के समाज हम लोग को इसमें इस अननेसेसरी प्रेशर में डालता है कि वो हम लोगों को, लोग डरते नहीं है, लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, लोग ज्यादा डरते हैं किस बात से, लोग कोई फेल हो जाएगा तो हमारा चाचा क्या कहतेगा, हमारा मामा क्या कहतेगा, हमारा कजन क्या कहतेगा, हमारा छोटा भाई क्या कहतेगा, फलाना क्या कहतेगा। सबसे पहले दिमाग से निकालो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे 4 लोग, राइट। अच्छा करोगे तो भी वो क्रिटिसाइज करेंगे, खराब करोगे तो भी क्रिटिसाइज करेंगे। अच्छा करोगे तुमको फल मिलेगा, खराब करोगे तुमको फल मिलेगा, दोनों का फल तुमको मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले कि हम, एक सिंपल सी बात है कि क्या तुम जब चलना सीखे थे तो एक बार में चलना सीख गए थे क्या? 10 बार गिरे होगे तब जाके चलना सीखोगे, तभी जाके चलना सीखोगे। तो उस बात में तो कोई मजाक नहीं उड़ाया तुम्हारा कि भाई तुम चल रहे गिर गया बच्चा, क्योंकि वो जानते लोग कि वो फेल होगा। तो वैसे ही फेलियर को, एक्सेप्टेंस में फेलियर को नॉर्मल बनाओ, राइट। अपने अगर तुम अपने टाइम में नहीं कर पाओगे तो अपना जो बाल बच्चा आएगा, आने वाला जनरेशन भी यही सेम हिट फील करेगा जो तुम कर रहे हो। तो इसको अपने लेवल पे नॉर्मलाइज करना जरूरी है, ताकि अगला जनरेशन अगर आए तो वो भी चीज करे। पहला चीज तो ये माइंडसेट बताना जरूरी है कि ठीक है, हम जो भी फेल होंगे तो हम उससे फीडबैक लेंगे, और फीडबैक लेके अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। मैंने कल परसों कहीं पे पोस्ट किया था, मैंने बोला था कि खुद से फाइट करना विथ अ पॉजिटिव नेवर, मतलब नो, मतलब कि ये आप नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ में खुद से फाइट करना कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है, राइट। तो आपको अपने पुरानी आदतों से या बुरी आदतों से छुटकारा पाना है, और प्रोग्रेसिव सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई लड़की है तो दैट कोई लड़की है तो वो हमसे कमजोर है, ये चीज एकदम नहीं सोचना आपको। कोई साउथ से तो वो है, कोई किसी और धर्म का है, जात का है, कोई और कलर का है, कोई और जेंडर का है, ट्रांसजेंडर है तो आप उनसे ऊपर हो, ये चीज नहीं सोचने का। सब कोई आपसे
सब कोई आपसे ऊपर भी हो सकता है, सब कोई आपसे नीचे भी हो सकता है। तो अपने आप को जमीन पे रखना है, अपने आप को इक्वल बेसिस पे रखना है, ईगो नहीं लाने देना है। सबसे बड़ी बात कि लोगों में आ जाता है ईगो, अरे हम तो मतलब कि हमसे बड़ा 30 मार्क का तो कोई नहीं, कोई 30 मार्क का नहीं, सब कोई इक्वल है, सब कोई कहीं ना कहीं कम है, कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहले ये लर्निंग एटीट्यूड आपको अपने अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरा एक मेथड ऑफ लर्निंग है जिसको मैं बोलता हूँ सी मेथड ऑफ लर्निंग। सी मतलब सागर होता है, और सागर की तरह लर्निंग इज अ सागर। तो सी का पहला एस जो है उसका मतलब होता है स्ट्रेटेजाइज, यानी कि जो आप लर्न कर रहे हो उसको स्ट्रेटेजाइज करो कि कैसे लर्न करोगे। क्या आप इंटरनेट से लर्न करोगे, क्या आप किसी मेंटर के पास जाके लर्न करोगे, मेंटर के पास जाके लर्न करो तो किनके साथ लर्न करोगे, बाकी स्ट्रेटेजाइज वो कर देगा, आपका कंटेंट कर देगा। इंटरनेट के थ्रू अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, स्पेशली अगर डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको बहुत सारा गलत कंटेंट भी मिलेगा, बहुत सारा सही कंटेंट भी मिलेगा आपको। मतलब कि 90% गलत कंटेंट, 80-90%, 10% आपको सही मिलेगा। अगर उसमें आप फर्क कर सकते हो तो आप वेल एंड गुड। ऐसा नहीं कर पाते हैं लोग, राइट। तो आप पहले स्ट्रेटेजाइज करो कि किसके साथ में, अगर कोई मेंटर के साथ में कर रहा तो बाकी स्ट्रेटजी वो बना देगा, स्ट्रीमलाइन कर देगा, क्या 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 चीज करना है उसको स्ट्रीमलाइन कर देगा, जो आपको नहीं आता ऑफकोर्स, राइट। दूसरी चीज, एग्जीक्यूट। जो भी चीज आप सीखो वो एग्जीक्यूट करो। दुनिया का कोई भी मेंटर, कोई भी टीचर आपको कब नहीं सिखा सकता, unless and until you try। No mentor, no teacher can teach you anything unless and until you try। अगर आप ट्राई नहीं करते हो तो वो आपको नहीं सिखा सकते हैं। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो और उसके बाद नहीं सीख रहे हो तो ये आपका फेलियर है। अगर आप ट्राई कर रहे हो फिर भी नहीं सीख रहे हो तो मेंटर से आपको खोजना पड़ेगा, मेंटर से आके बोलना पड़ेगा मेरे को नहीं आ रहा, समझाइए मेरे को कैसे करने का। तो आपको आपके पास में चॉइसेस, दो चॉइस है आपके पास में, या तो काम करो या तो ना करो। ना करो तो ना करो, फेल हो गए, राइट। और तीसरा है एनालाइज। ये मतलब होता है एनालाइज, जो भी आपने एफर्ट किया उसका रिजल्ट क्या है उसको एनालाइज करो। अब क्या उसमें कुछ बेहतर हो सकता है, अगर बेहतर हो सकता है फिर से सी में आ जाओ, फिर से स्ट्रेटेजाइज में जाओ, फिर से सर्कल को चलाते रहो। तो ये सी मेथड ऑफ लर्निंग बहुत इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप स्ट्रेटेजाइज करो, नहीं तो आपके लिए मेंटर कर देगा, एग्जीक्यूट करो, एनालाइज करो चीजों को। Yeah, exactly. And also, just like initial time में skills में दिक्कत क्या आती है कि कौन सी वाली सीखूं मैं, and कौन सी वाली like मेरे लिए बेस्ट है। तो how can like innovate in initial time में कि मुझे किस यार स्किल सीखना है। इसका कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है, इसका कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है, इसका हिट एंड ट्राई तरीका है। कोई एक चीज तुम कर रहे हो उसको अगले 3 से 6 महीना तक करो। अगर तुमको इसको इंटरेस्ट है और तुमको लगता है कि नहीं तुम कर सकोगे, याद रखना इंटरेस्ट, सक्सेस फेलियर की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमको इंटरेस्ट है और तुम उसमें कर सकते हो, तुमको लगता है कि तुम कुछ 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 तो आगे बढ़ रहे हो, राइट। या तुमको इंटरेस्ट है या तुमको गट फीलिंग आ रहा है तो उसके साथ में तुम बढ़ जाओ। ये यही एक इफेक्टिव तरीका है। ऐसे हवा में कोई नहीं बता सकता क्या है क्या नहीं। जब तक तुम मैदान में नहीं उतरोगे तब तक तुमको हीट महसूस नहीं होगा। Exactly, exactly. And also, you are talking about online learning versus offline learning. So, which one is initial time the best for according to you? What's your point of view on offline versus online? दोनों ही बेस्ट है यार, वो डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड करता है। ऑफलाइन में तो ऐसा सा टीचर है जो तुमको गधा बना देगा, तुमको मतलब कि तुम पढ़ने जाओगे तो तुमको कुछ पढ़ाई भी ना करेगा, तुम्हारा डाउट एकदम ईगो में इतना रहेगा, तुम्हारा डाउट है ना क्लियर करेगा, राइट। तो ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी है, वो डिपेंड करता है कैसा है। जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन इक्वल है। ऑफलाइन में हम 60 घंटा पढ़ाते हैं, जो चीज 65 घंटा पढ़ाते हैं वो ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में 100 घंटा हो जाता है, क्योंकि कैलिब्रेट करना पड़ता है चीजों को, राइट। तो दोनों चीजें हम लोग की सेम हो जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि टीचर कौन से है। हम लोग ने ऑफलाइन पढ़ा है, अमेजन में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। हमने ऑनलाइन पढ़ा उसमें भी अमेजन में किए हैं। हम लोग ने ऑफलाइन पढ़ा है, पब्लिशिस्ट में स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। हम लोग ऑनलाइन पढ़ा है उसमें भी पब्लिशिस्ट में हुए हैं। ग्रुप एम में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसीज है। तो इस टाइप के बहुत सारी चीजें हुई हैं, राइट। तो हम लोग के लिए तो दोनों सेम ही है। वो डिपेंड करता है कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, क्या एटीट्यूड है सामने वाला पढ़ाने का, कितना हम्बल है, कितना क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तैयार है, उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे टीचर के ऊपर। Exactly. And also, you are talking about the online. क्योंकि काफी ज्यादा अभी के टाइम लोग ऑनलाइन ज्यादा ज्वाइन करते हैं बिकॉज ऑफ कोविड, या फिर काफी सारी ऐसी सीरीज होती है ना, नहीं होते ऑफलाइन में इतने अच्छे टीचर्स। तो ऑनलाइन ज्वाइन करते करते हैं उस टाइम में किस तरह से लाइक आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये वाला टीचर अच्छे है, ये वाले बुरे हैं, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि इनिशियल टाइम में नहीं होता इतना आइडिया। एक ऐड देखा है तो तो सेम तरीका,
उसका सेम तरीका है जो तुम्हारा ऑफलाइन में टीचर कैसे ढूंढते हो? तुम जाते हो, उनसे बात करते हो, उनके स्टूडेंट से बात करते हो मे बी, राइट, और उनके बात करने का तहजीब तरीका देखते हो, काउंसलर से बात करते हो, काउंसलर से कुछ कुछ चीजें लेते हो, तो इसके ऊपर में डिपेंड करता है, राइट। तो सेम तरीका ऑनलाइन में सिंपल, ऑनलाइन इनफैक्ट ज्यादा इजियर है टीचर को फाइंड करना, क्योंकि ऑनलाइन में तुम बगैर इंस्टीट्यूट को तुम खोज सकते हो उसका स्टूडेंट कौन, ऑफलाइन में थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ यार एग्जैक्टली, ये चीज तो है। एंड आल्सो एक और भी चीज होती है जस्ट लाइक सेल्फ लर्निंग। सम गाइस, कुछ कुछ लोग सेल्फ लर्निंग भी प्रिपेयर करते हैं इस स्किल्स को। तो अगर सेल्फ लर्निंग एक इनिशियल टाइम में इज द गुड वे, या फिर इनिशियल टाइम में हमें कुछ कोर्स में इन्वॉल्व इनिशियल करना टाइम में चाहिए गुड देन नहीं सेल्फ लर्निंग? है, तो इनिशियल टाइम में गुड नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों गुड नहीं। सेल्फ लर्निंग एक मूवमेंट के बाद सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि सेल्फ लर्निंग शुरुआत में तुमको एक टीचर, एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी चीजों करने। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपस्किल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं 4 महीना कोई स्टूडेंट को सिखाने के लिए सोशल मीडिया, पेड मार्केटिंग, और ये क्या बोलते हैं तुम्हारा कैसे ऐड चला सकते हैं, इफेक्टिव ऐड चला सकते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे करते हैं सोशल मीडिया। इसके अलावा और भी चीजें, अभी ये 4 चीजों की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। नाउ अगर सेल्फ लर्निंग तुम करने जाओगे, जिस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने में तुम कम से कम तुमको 2 से 3 साल लग जाएंगे। ये 2 से 3 साल का जो टाइम है, डेढ़ मतलब कि टाइम है, लेट से हमने 4 महीना लेते हैं, लेट से हम 6 महीना ही ले लेते हैं, 2 महीना और पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो भी तुम्हारा 1.5 साल टाइम बच रहा है। 1.5 साल के टाइम में तुम अपने कैरियर में क्या कर सकते हो, तुम नहीं जानते हो। 1.5 साल का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। 1.5 साल के टाइम में जो तुम 1.5 साल के टाइम में जो तुम कर खा करके सीखोगे, कहीं इंटर्नशिप करोगे, जैसे कि तुमने कहीं कर लिया, जॉब कहीं कर लिया कि भाई चलो हमको सीखने के लिए कर लिया, तुमको 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, ठीक है। चूंकि तुम सीख ही रहे हो, तो अगले साल भी तुम्हारी सैलरी 12-15 12 हजार से ज्यादा नहीं पड़ेगी, 12-13-14 हजार से ज्यादा, 2-3 हजार रुपये से ज्यादा नहीं पड़ेगी। फिर अगले साल 15 हजार होगी, तो 3 साल में तुम्हारी या 2 साल में तुम्हारी सैलरी 15 हजार होगी। लेकिन अगर तुम वही सीखे हो, तो पहला जॉब लेट से ये भी 10,000 रुपए से स्टार्ट करता है, लेकिन चूंकि तुम सीखे हुए हो, तुम रिजल्ट डिराइव कर सकते हो, तुम सीखने के मोड में नहीं, तुम रिजल्ट ड्राइव करने के मोड में भी, समझो इस बात को, राइट। तो तुम्हारी सैलरी डबल हो सकती है, 20,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है, डबल भी हो सकती है, डबल हुई है मैंने देखा है, राइट। उसके बाद में तीसरे साल में अगेन तुम और जंप मार सकते हो। लेट से तुमने पहले साल में मार दिया, लेट से 5,000 रुपए जंप मार दिया, 15,000 मार दिया, दूसरे साल में तुमने 10,000 और का जंप मार दिया, तुमने स्विच कर लिया कहीं पे, वहां पे हो गया। तो यहाँ पे तुमको महीने के 25,000 रुपए सैलरी मिल रही है, वहां पे तुमको महीने के 15,000 रुपए सैलरी मिल रही है, कौन ज्यादा है? एग्जैक्टली। सीखने का टेंशन भी नहीं है, मतलब कि सीखने का दर्द भी नहीं है। तो लोग इस बात को नहीं समझते, लोगों को लगता है ना कि नहीं एक देखो एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ा लिया, मैं ऐसे बात नहीं करता अरोई तरोई की बात नहीं करता हूँ, मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ा दिया, राइट, और लेट से मैंने कुछ फीस ले ली उससे, राइट। अब उस तुम जान लो कि वो फीस वो जिंदगी भर उसी से खाएगा, कमाएगा, खाएगा, उसी से करेगा, राइट। उसको कितना ज्यादा रिटर्न मिल जा रहा है, सोचो तो पहले इस बात को, कैलकुलेट करो खाली। ये कि काफी हो रहा है उसको, अगर ले ऐसे देखे तो 400 500 एक्स ऐसे बोलूंगा मैं क्योंकि वो राइट, उससे भी जितना ज्यादा। स्पेंड कर रहे हैं ऑब्वियसली उससे तो ज्यादा, उससे वो बहुत बहुत ज्यादा मतलब कर रहा है। वही मैं बोल रहा ना कि एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, लोग इसको समझते नहीं। लोगों को लगता है ना, अरे हमारे पास टाइम है, टाइम ज्यादा कीमती है, एग्जैक्टली। टाइम से तुम एग्जैक्टली वो चीज ऑनेस्टली, yeah, exactly. I just give the same example to myself. Honestly, मैं कॉलेज के टाइम में मैंने 18 में कॉलेज किया था। 18 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था। और मैंने सबसे बड़ी, अगर मुझे लगता है ना, मिस्टेक वही की मैंने सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दी, जैसे एसईओ खुद से सीखना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें ही मुझे 2-3 साल लग गए, बट एग्जैक्टली 2 साल बाद भी पता चला कि मैं वो चीज कर रहा हूँ जो चीज नहीं करनी चाहिए थी। इस सोशल बुक मार्केटिंग और वो ब्लॉग कमेंटिंग में इधर उधर लिंक चिपका के आ रहा हूँ, बेस्ट सर्विस इस वाले। और बाद में पता चला ड्यूरिंग द कोविड सब लोगों को देखने लगा कि ये तरीका तो बिल्कुल ही गलत होता है। ये तो सेलिंग का नहीं, एक तरह से आप जाके डाल के आ रहे हो, लिंक बिल्डिंग हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उसका फाइनल अलग रहता रिजल्ट तो क्लाइंट का जीरो आ रहा है। तो है। वही सोशल चीज की सेल्फ मार्केटिंग, लर्निंग में आई थिंक वो चीज होती है कि मिस्टेक्स कभी कभी पता नहीं चलता, बाद में जाकर इनिशियल टाइम में मेंटोर से या फिर इनकी हेल्प ले ली तो वो चीज क्लियर हो जाती है। वो आपका 1 से 2 ईयर का गैप हो जाता है, वो फील होके 5 to 6 मंथ में आप एक काफी बात मिस्टेक्स तो आप टीचर से सीख लेते हो।
एक बात जान लो, सोशल बुक मार्केटिंग बेस्ट नहीं होता है। सोशल बुक मार्केटिंग अगर तुम अपने अपने वेब पेज का कर रहे हो, अपने वेबसाइट का कर रहे हो, तो वो बेकार होगा। लेकिन अगर तुम अपने बैकलिंक का कर रहे हो तो वो तुमको फायदा देगा। उसका रीजन ये होता है कि बैकलिंक जब तक तुम्हारी इंडेक्स नहीं होती तब तक उसका वैल्यू नहीं होता है। और बैकलिंक को इंडेक्स कराने के लिए तुमको फेमस वेबसाइट में, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे गूगल के बॉट जाते हैं, वहां डालना जरूरी होता है। तो सोशल बुक मार्केटिंग एक ऐसी साइट है जहाँ पे गूगल के बॉट हमेशा रहते हैं। तो वहां पे अगर तुम अपना बैकलिंक पोस्ट कर देते हो तो उसका इंडेक्सिंग फास्टर हो जाता है, बहुत फास्ट तरीके से इंडेक्स करता है। तो अगर तुम अपनी वेबसाइट डाल रहे हो सोशल बुक मार्केटिंग में, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन रैंकिंग। बट अगर तुम अपने बैकलिंक्स को डाल रहे हो तो वो हेल्प करता है। लोग बैकलिंक्स को नहीं डालते, वो लोग अपनी वेबसाइट को डालते हैं, ये गड़बड़ साइट को करते हैं, इसलिए डाल, सोशल बुक मार्केटिंग। ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, नाउ and also, ये चीज जब तक तुम्हारे पास में एक मेंटर नहीं होगा, एक टीचर नहीं होगा, तब तक तुमको समझ में नहीं आएगी चीज। हाँ एग्जैक्टली, इट्स लाइक बहुत ज्यादा वो चीज होती है। दैट्स व्हाई नाउअडेज आई प्रिपेयर टू परचेस अ कोर्स, या फिर डिजिट ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन नहीं हो रहा है तो मोस्ट ऑफ तो मैं ऑनलाइन ही ट्राई करता हूँ अभी तो, कि ऑनलाइन ही परचेस कर लूँ छोटी छोटी, मतलब एक एक स्किल्स के, कि एट ए टाइम वन स्किल सीख रहा हूँ तो उसी स्किल से रिलेटेड कोर्स परचेस कर लिया, देन उसी पे ही वो चीज आगे कंटिन्यू करना। ठीक है। एंड अदर वन इज सम स्किल्स जो इनिशियल टाइम में मतलब सबको नीड्स होती है कॉलेज के टाइम, जैसे सेल्स हो गया, कंटेंट हो गया, आई थिंक सोशल मीडिया हो गया। तो ये जो कुछ कुछ ऐसी स्किल्स होती है जो हर सबको नीड्स होती है। तो व्हाट आर द सम स्किल्स जो सबको नीड्स होती है उनकी? देखो, सॉफ्ट स्किल्स में तुमको कुछ कुछ स्किल्स हैं, जैसे कि तुमको लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, तुम सुनो दूसरों की बातें, सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमको कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एज अ मार्केटर भी कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल दोनों होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन स्किल्स तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये सब में होनी चाहिए। फाइनेंस की स्किल सबके पास में होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कैसे होता है, कैसे किया जाता है। सेल्स की स्किल थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी स्किल, सेल्स करने की भी स्किल लोगों के पास होनी चाहिए। हम लोग जिंदगी भर सेल्स करते हैं, वो हम लोग को रियलाइज नहीं, हम लोग करते हैं, हम लोग मतलब नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली करते हैं। तो वो स्किल्स लोगों के पास में होना चाहिए। लोगों को नेटवर्किंग स्किल होनी चाहिए, एक दूसरे को जानने के लिए, राइट, वो स्किल होनी चाहिए। बात करने का तहजीब तरीका, सोच के बोलना, या दैट सामने वाले को ऑफेंड ना करे ज्यादा, उस टाइप से बोलना, ये सब सारी स्किल्स जो होती हैं, ये सारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं लीडर्स जो होते हैं वो लीडर्स हम ये नहीं कर सकते हैं, लीडर्स पैदा होते हैं, लीडर्स बना नहीं सकते, बट कि जबकि ये सच नहीं है। लीडर्स कैन बी मेड विद द बिहेवियरल चेंजेस, विद द माइंडसेट, दे कैन बी मेड। हाँ, यहाँ पे आप, ये डिबेटेबल है कि खराब लीडर बने या अच्छा लीडर बने, राइट, इस बात का डिबेट हो सकता है। बट लीडर कैन बी मेड, राइट। जैसे कि आप अगर जाओगे, इंग्लैंड में जाओगे, राइट, तो इंग्लैंड में जैसे कि कोई राजा हुआ इंग्लैंड में, उसको पूरा एक तरीका सिखाया जाता है, ऐसे करके खाना है, ऐसे करके बैठना है, ये डिसीजन, शास्त्र, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं शास्त्र पढ़ाया जाता है, राइट। तो शास्त्र, उनका जो शास्त्र वो पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि पैदा और लीडर हो गया, राइट, वो हो गया, वो उसको पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के बाद में भी यार, ऐसा तो हम लोगों ने बहुत देखा है कि अपने लाइफ में देखा है कि दैट बहुत सारे ऐसे लीडर हुए हैं जो ऐसा नहीं है कि ब्लड से रिलेटेड कुछ है, वो हुए हैं क्योंकि दैट दे एक्चुअली ओन द थिंग्स, दे एक्चुअली डू द थिंग्स। तो ऐसा आप सीख सकते हो, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दो। ये लीडर वही बनता है जिनके बारे में लोग बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे साथ कुछ अच्छा किया, या ये इस चीजों को लेकर आगे चल रहा है। तो वो प्रोग्रेसिव सोच रखना बहुत जरूरी है। या एग्जैक्टली यार, लाइक सॉफ्ट स्किल्स हुई ना, जो बेसिक बेसिक जैसे लिसनिंग हुई, कम्युनिकेशन हुई, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और ऑनेस्टली बहुत ज्यादा, मतलब ना ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा एक तरह से स्टक कर देती है, बहुत ज्यादा रोक देती है। अगर आप ओवरऑल ग्रोथ को, जैसे मैं अपना पर्सनली, क्योंकि ना सोशल मीडिया से या फिर कंटेंट क्रिएशन से, कम्युनिटी से, यही सबसे अच्छी चीज सीखी कि वहाँ खुद सेल्फ एनालिसिस बहुत हो जाता है कि मतलब कहाँ राइट। पे मैं स्टक हो रहा हूँ, कहाँ पे किन चीजों की। क्योंकि मेंटोर आपके साथ है तो आप उनसे पूछ सकते हो, या फिर वो इतना आपको गाइड कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट सेल्फ एनालिसिस हो जाए कि हाँ, ये स्किल्स मुझे एक्योर करना है, यहाँ पे मैं स्टक हो रहा हूँ, इस चीज की वजह से जो मेरी ग्रोथ थी वो चीज रुक रही है। एंड सो अदर कम इन डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स भी एक तरह से आई थिंक अभी के टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ कुछ स्किल्स होती हैं वो सबके लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हो, चाहे वो लाइक उनका, चाहे वो नहीं कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब, इवन उनके लिए भी। तो देन बाय एवरीवन आई थिंक नीड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग
की जो स्किल्स होती है उनका। ठीक है सर। And also another one question is like the community are so helpful for everyone and I personally feel community is something जो आपको बहुत कुछ देती है and self learning में आपके जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड तो how community are helpful and why is it important for everyone? सो कम्युनिटी हमेशा हेल्पफुल है यार। तुम्हारा अराउंड में कम्युनिटी है। कम्युनिटी ऑनलाइन कोई नई चीज थोड़ी है। जैसे तुम स्कूल जाते हो तो स्कूल में किताब पढ़ने वाले, बुक पढ़ने वाले, बुक लवर की कम्युनिटी है, तो बुक लवर की कम्युनिटी तुमको हेल्प करती है। क्रिकेट खेलने वाली कम्युनिटी तुमको हेल्प करती है क्रिकेट खेलने के लिए। यू नो दैट। बदमाशी करने वालों की कम्युनिटी है, बदमाशी करने में हेल्प करती है। तुम्हारे फादर हैं जो प्रेयर करने मंदिर में जाते हैं, तो उनके जितने फ्रेंड होंगे प्रेयर करने वाली कम्युनिटी, तो प्रेयर ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से ज्यादा नॉलेज धर्म के बारे में जान सकते हैं, तो उनकी कम्युनिटी वो उस तरह से करते हैं। रिटायर्ड पर्सन होते हैं, उनकी कम्युनिटी, उनका एंटरटेनमेंट बैठ के बातचीत करके टाइम पास करना है, वो कम्युनिटी उनको हेल्प करती है। सिमिलर वे में ऑनलाइन कम्युनिटी भी आपको, जो आपका गोल होता है, कम्युनिटीज और ग्रुप ऑफ पीपल में यही फर्क होता है। कम्युनिटीज का एक गोल होता है और ग्रुप ऑफ पीपल का गोल नहीं होता। रैंडम पीपल मेट्रो में जा रहे हैं, राइट, और मतलब रैंडम पीपल बाजार में घूम रहे हैं, तो उनका गोल अलग अलग हो सकता है। एक बाजार में घूमने वाला गोल अलग अलग हो, कोई रेस्टोरेंट में खाने गया है, कोई यू नो दैट, कोई शॉपिंग करने गया है, कोई चिल मारने गया है, राइट। तो अलग अलग हो सकता है, कोई किसी से मिलने गया है, अलग अलग गोल हो सकता है एक ग्रुप में, लेकिन एक कम्युनिटी में हमेशा एक गोल होता है। अगर प्रेयर करने वाली कम्युनिटी तो सिर्फ प्रेयर करने वाली बात करेगी, वो फिर बात नहीं करेगी कि क्रिकेट में क्या हुआ और ये हुआ। अगर मौज मस्ती करने वाली कम्युनिटी तो मौज मस्ती की बात करेगी। तो इसी तरह से कम्युनिटी हेल्पफुल होती है। ऑनलाइन कम्युनिटी भी एक सिंपल लॉजिक पे चलती है, एक सिंपल चीजों पे चलती है, तो वहां से लोगों को हेल्प मिलता है, लोग शेयर करते रहते हैं अपनी नॉलेज। या एग्जैक्टली एंड सेम कम्युनिटी और सेम टाइप के लोग मिलते हैं तो उनमें ऑब्वियसली कन्वर्सेशन भी और एक मतलब अट्रैक्शन भी काफी बढ़ता है। अदरवाइज और वो नॉर्मल जिनके गोल डिफरेंट हो उनसे एक तरह से कनेक्शन बनाना भी थोड़ा हार्ड होगा। एंड अदर वन द लास्ट क्वेश्चन जे कम्युनिटी स्किल्स के बाद देन अर्निंग का काम आता है। कुछ ऑब्वियसली सब कुछ ना कुछ स्किल्स कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए, तो अर्निंग के जनरली लोग दो सोर्स चूज करते हैं, या तो जॉब या फिर फ्रीलांसिंग। एंड व्हाट यू प्रिपेयर इन द इनिशियल टाइम में, और किसी ने जस्ट स्किल सीखी है तो विच वन इज द बेस्ट, फ्रीलांसिंग या फिर जॉब या फिर इंटर्नशिप? यार देखो, जिसमें तुम खुश हो वो अच्छा है। बस 9 to 5 वाले जो एक बहुत ही क्या बोले उनको, बहुत ही आपको, तो जो लोग आपको ये बात बोलते हैं ना 9 to 5 जॉब खराब है, उनसे आप दूर रहिए। मैं यही बोलूंगा, 9 to 5 कोई जॉब खराब नहीं होता है। उनके बगैर, जो व्यक्ति बोल रहा है ना, उनके बगैर उनका कंपनी खुद नहीं चलेगा। उठ के तो पानी नहीं पी सकते वो लोग, समझे? तो उनके बगैर उनका कंपनी खुद नहीं चलेगा, और उन्हीं को खराब बोलते हैं। तो वैसे लोगों से दूर रहिए जो आप बोलेंगे 9 to 5 खराब है। वैसे लोगों से दूर रहिए जो बोलेंगे हम लोग का एजुकेशन सिस्टम इज अ स्कैम और वो बहुत खराब है। वैसे लोगों से दूर रहिए। वैसे लोग क्या करते हैं कि आपके अंदर में डर पैदा करके अपना फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं, इस चीज को करते हैं। तो डर जो होता है ना, डर को थोड़ा सा अच्छे तरीके से यूज किया। डर आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है, कुछ गलत होने वाला तब है। तो लोग आपको डराएंगे, लोग आपको इस तरह से चीजें करेंगे, नफरत पैदा करेंगे। आप जैसे बोलेंगे 9 to 5 जॉब कौन करता है? 9 to 5 जॉब अपना जिंदगी खुद ओन करो। तो 9 to 5 के खिलाफ में आपके फादर भी 9 to 5, उसके खिलाफ में वो बेसिकली क्या हो रहा है, आपको नफरत पैदा कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस हेट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? सो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर 9 to 5 जॉब में खुश हो तो आप खुश हो। सुंदर पिचाई भी 9 to 5 जॉब करता है। सुंदर पिचाई देखो, अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर के इतना उसका जितना सैलरी है तो उतना नहीं है, राइट? तो 9 to 5 जॉब तो वो भी करता है, उसका भी तो अपना बिजनेस है नहीं, गूगल किसी और का है, राइट? और अपना बिजनेस करो तो अपना बिजनेस भी करो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, 9 to 5 जॉब में कुछ अच्छाई है, कुछ खराबी है, और अपने बिजनेस में कुछ अच्छाई है, कुछ खराबी है। या आप फ्रीलांस बिजनेस की बात करो तो देखो, मैं फ्रीलांस मार्केटिंग नहीं बोल रहा, फ्रीलांस बिजनेस बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। 9 to 5 जॉब में आपको एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना पड़ता है। आप अगर सेल्स वाले तो सिर्फ सेल्स में काम करोगे, एक टारगेट है, टारगेट मीट करना पड़ता है, हो गया काम खत्म। टारगेट अगर नहीं भी मीट करे, तबीयत आपकी खराब हो गई, बुखार हो गया, कोविड हो गया, आप रहे, फिर भी आपको कंपनी से सैलरी एक महीने के एंड में आपको सैलरी आ जाएगी। बिजनेस अदर हैंड इट्स मोर डिफिकल्ट देन 9 to 5। लगता है इजी, लोग लगते हैं बहुत करते हैं, बट इट्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज इन जॉब यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ, आप सिर्फ अपने लिए अर्न करते हो। बट बिजनेस में आपके साथ में जो 10 15 20 50 एम्प्लॉय आपके साथ में, उनके लिए आपको कमाना पड़ता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि बिजनेस में आपको मल्टीपल रोल लेने पड़ते हैं। आप सेल्स वाले भी हो, आप मार्केटिंग वाले भी हो, आप कल हो के कुछ और हो, परसों हो गए अपने ऑफिस के चपरासी बन गए। हम तो सब करते हैं भाई। चाय पिलाना तो हम खुद लाके चाय भी पिला देते हैं, हमारे यहाँ कोई आता है।
हमको कोई इससे कोई शर्म की बात नहीं है, राइट। तो कोई शर्म होना भी नहीं चाहिए उसमें, ऐसा कोई गंदा काम तो है नहीं, वो हर काम अपना अपने जगह पे महान काम है। तो ये जो चीज है ये बेसिकली आपको जिस चीज में खुशी है, आप अगर 9 to 5 में खुश हो वो कीजिए, आपको अगर उसमें खुशी मिले तो ये कीजिए। फ्रीलांस में एक चीज समझ लीजिएगा, इट्स अ फ्रीलांस बिजनेस। फ्रीलांस बिजनेस दो पार्ट है। फ्रीलांस बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट मार्केटिंग। आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गया तो इट्स नॉट बिजनेस। डिजिटल मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, लीगल, इट्स ये बहुत सारे पार्ट होते हैं बिजनेस के। ऑपरेशंस, क्लाइंट हैंडलिंग, बहुत सारे पार्ट होते हैं। अगर आप फ्रीलांस सोच रहे हो कि मेरे को एसईओ आता है मैं फ्रीलांस कर लूंगा, तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर पर्सपेक्टिव, एज मोस्ट ऑफ द पीपल फेल्स इन फ्रीलांस बिजनेस बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वो सोचते हैं कि सिर्फ मेरे को एक चीज आता है मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। बिजनेस, you understand, it's a business. Marketing is just a part of business, right? I hope I answer your question. या एग्जैक्टली, एंड दैट्स द रीजन कि वो एक क्लाइंट्स मिलने के बाद दूसरा क्लाइंट्स मिलना और फिर वो उनके लिए हार्ड हो जाता है। जे अगर फ्रीलांस बिजनेस की देखें तो इन फाइनेंस मैनेज उनका, क्योंकि बिकॉज एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट टाइम पे नहीं मिल रहा है तो वो गैप हो जाता है। तो वो गैप को कैसे फिल करना, उनकी नेक्स्ट क्लाइंट कब मिलेगा, जो ऑलरेडी फाइनेंस है उनको उस टाइम तक मैनेज करना, और वो सारी चीजें काफी लोग इस चीज का करते हैं ऑनेस्टली। वन ऑफ सम ऑफ पीपल आई नो जिनके ये इश्यूज आता है। Right. सो once again last in the last, if you want to say anything else. सो मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि कोई भी आपके बारे में बोल रहा है कि आपसे कोई काम नहीं होगा, ये नहीं काम होगा, तो उनसे इंगेज ना कीजिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, किल देम विद सक्सेस, बरी देम विद स्माइल। बस सक्सेसफुल हो जाओ, बोलने वाला चुप हो जाएगा, और फिर एक हल्का सा मुस्कुराहट दे दो, बस खत्म, राइट। सो बस मैं यही कहना चाहूँगा। Yeah, yeah, also that's a great advice for everyone. बिकॉज बहस करने बैठोगे तो और लंबा चल जाएगा, इसमें फिर आपका ही नुकसान है। आपका जो टाइम लॉस हुआ आप वो टाइम आप वेस्ट कर और रहे हो दूसरी ना, जगह टाइम लगा जहाँ पे इन्वेस्ट करना आप वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, सकते वो नहीं करना, हो। इन्वेस्ट करो, दूसरे को मोटिवेशन बनाओ ना। Yeah. And also, guys, if you want to be reached with Arwa Usmani sir, so you can check their social media, go and message. And if you want to be join their community, so go and check out on Facebook. I think Upskill Community. Yeah, upskill community, upskill digital marketing community. It's already had 27,000 members, and you can follow me on Instagram or Twitter at Real Arbab Usmani. Yeah, and once again, thank you so much for to be here, and it's really to be honor and pleasure for me. You are sharing your experience and giving your most important time. Thank you for calling. Thank you for inviting. Thank you very much.